دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے یمن کے گاؤں کی زندگی کے بارے میں کہ یہاں کے عرب یمنی لوگ ان خوبصورت گاؤں اور دیہاتوں میں اپنی زندگی کیسے بسر کرتے ہیں۔ یہاں کے لوگ کن کن روایتی طریقوں سے فصلوں کی کاشتکاری اور کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ یمن کی اولڈ عرب تہذیب و ثقافت پرانی روایات سے لے کر یہاں کے یمنی لوگوں کی شادیاں بھی آپ کو دکھائیں گے۔ یمن کے اولڈ ثقافتی ورثوں سے لے کر یہاں کی قدیم ترین وادیاں، یمن کی مکمل تاریخ اور خوصی باغیوں کے بارے میں بھی آپ کو معلومات فراہم کریں گے۔ اس طرح کی تمام دلچسپ انفارمیشن یمن ولیج لائف کے بارے میں آج آپ ہمارے ساتھ جانیں گے۔ عرب دنیا میں جزائر پر بسا یہ دنیا کا ایک قدیم ترین ملک ہے جو اپنی تاریخ، پرانی ثقافت اور اپنے ایک شاندار ماضی کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ دوستو زمانہ قدیم میں کبھی یہ سارا یمنی خطہ علم و حکمت سے لے کر علم طب، علم حیوانات اور ماہر فلکیات کا گھر ہوا کرتا تھا۔ یہاں دوسرے ممالک سے بھی لوگ یہاں علم و حکمت سیکھنے آیا کرتے تھے، لیکن موجودہ وقت میں مسلسل خانہ جنگی اور سول وار کی وجہ سے یہ ملک آج تباہی کے دہانے کھڑا ہے۔ دوستو یمن میں آپ جدھر بھی نظر دوڑائیں گے آپ کو یمن میں وہی پرانا کلچر، پرانی عمارتیں، یہاں کا اولڈ انفراسٹرکچر ہی زیادہ تر دیکھنے کو ملے گا۔ یہاں یہ یمنی لوگ زمانے قدیم سے ہی آباد ہیں۔ دوستو سال 2025 کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق یمن کی کل آبادی 4 کروڑ 17 لاکھ کے آس پاس ہے، جس میں یہاں سب سے زیادہ آباد ہیں یمن کے ہمیار اور سبائی قبیلے کے لوگ۔ یمن کا یہ ہمیار قبیلہ جنوبی عرب کا ایک عظیم الشان قبیلہ ہوا کرتا تھا جو 110 قبل از مسیح سے لے کر 525 عیسوی تک یمن پر حکمران رہا ہے۔ حمیری سلطنت نے اسلام سے پہلے یمن کی تہذیب و ثقافت اور یہاں کے فن تعمیر اور زراعت میں اپنا اہم کردار ادا کیا تھا۔ یمن کی سرزمین بے شمار پرانے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ملکہ بلقیس کا قبیلہ جو آج بھی یمن میں موجود ہے، جو سبائی قبیلے کے نام سے مشہور ہے، یہ قبیلہ یہاں ہزاروں سالوں سے ہی آباد ہے۔ ان دو بڑے قبائل کے علاوہ یمن میں عربوں کے مزید ذیلی قبیلے بھی آباد ہیں، جن میں معین، اوسان، مدہج، حابیل، حاشد، حوران، الاسیری، الحجتی قبائل کا شمار بھی یمن کے بڑے قبائل میں ہوتا ہے۔ انہی تمام قبائل کا اثر اور رسوخ یمن کی سرزمین پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ یمن کو مختلف عرب قبائل کی سرزمین بھی کہتے ہیں، جو یہاں ایک خانہ بدوشی جیسی زندگی بھی بسر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زمانے قدیم سے لے کر آج تک یمن کی ایک بہت بڑی ملکی آبادی یہاں کے گاؤں اور دیہاتوں میں ہی رہائش پذیر ہے۔ دوستو یمنی گاؤں اور دیہات دکھنے میں انتہائی زیادہ پیارے، صاف ستھرے اور سادہ جانے جاتے ہیں، جن میں یمن کی اولڈ تہذیب و ثقافت کے رنگ یہاں آج بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یمنی لوگوں کے گاؤں اور دیہات وہی پرانے اندازوں میں تعمیر کیے جاتے ہیں، جن میں لکڑی، پتھر، گارے اور مٹی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کے گھروں کا ڈیزائن تقریباً ایک جیسا ہی رکھا جاتا ہے۔ یمن کی زیادہ تر ملکی دیہی آبادی صدیوں سے ہی کھیتی باڑی کے روایتی پیشوں کے ساتھ منسلک ہے، جہاں یمنی کسان آج کے دور میں بھی جوار، باجرہ، گندم، مکئی، پھل فروٹ جات اور سبزیاں یہاں کاشت کرتے ہیں۔ یمنی کافی بھی پوری دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہے، جس کو عربی کافی بھی بولتے ہیں۔ یمن میں کافی کی کاشتکاری زمانہ قدیم سے وہی پرانے اور روایتی اندازوں میں کی جاتی ہے۔ تب کے دور میں علم طب میں اس کافی کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا تھا۔ یمن کے مکاؤ ڈسٹرکٹ میں یہاں سب سے زیادہ کافی اگائی جاتی ہے۔ دوستو افغانستان میں موجود جیسا کہ افغان لوگ نسوار کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، کراچی کے لوگ پان کا استعمال، ایسے ہی یمنی لوگ ہلکے نشے کے طور پر قات کے پتوں کو چبا کر اس کا استعمال کرتے ہیں، اور یمن کے ان دیہی علاقوں میں اس قات کی فصل کی بہت زیادہ کاشتکاری کی جاتی ہے اور اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ بھی سمجھی جاتی ہے۔ دوستو یمن کا کل 44% ہی ملکی حصہ قابل کاشت ہے، باقی ملکی حصہ جزائر، چراگاہوں، پہاڑوں، جنگلوں اور صحراؤں پر مشتمل ہے۔ یمن کا کل رقبہ 5,27,968 مربع کلومیٹر ہے،
जिसमें इस मुल्क की सरहदें सऊदी अरेबिया और ओमान से मिलती हैं। इसके साहली इलाके बहीर अहमर और बहीर अरब के साथ जुड़े हुए हैं। यमन के बारे ये भी काफी मशहूर है कि ये पूरी दुनिया की मईशत सिर्फ 15 मिनट में बंद कर सकता है। यमन का महल वकूअ दुनिया के सबसे अहम बहरी तजारती रास्तों में से एक है। यहाँ बाबुल मुंदब जो बहीर अहमर को खलीज अदन और बहीर हिंद के साथ जोड़ता है। दुनिया के बड़े माल बरदार बहरी जहाज तेल और गैस की तजारत के लिए इसी समुद्री रास्ते को इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से यमन का ये हिस्सा इंतहाई अहमियत का हामिल है। दोस्तों, ज़माने कदीम में कभी ये मुल्क अपने शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने आला फनी तामीर की वजह से भी जाना जाता था। यहाँ दुनिया की खूबसूरत तरीन फलक बोस इमारतें मिट्टी से तामीर की जाती थी। यमन के अगर दारुल हुकूमत सिटी सना पर एक नज़र डालें तो इसका फनी तामीर भी ओल्ड यमनी कल्चर की यादें ताज़ा कर देता है। सना यमन का कैपिटल सिटी होने के साथ साथ मुल्क का सबसे बड़ा अहम तारीन तारीखी सकाफती और तजारती शहर है। इस शहर में लगभग आज भी 35 लाख के करीब यमनी लोग आबाद हैं। सना के बाद अदन, अल हदीद, तेज, हिजरमौत, अल मकाओ, इब जमार, मकारब, लहाज, होलान का शुमार भी यमन के तमाम बड़े शहरों में होता है। दोस्तों, यमन के इन तमाम बड़े शहरों से निकलें और यमन के पहाड़ी इलाकों का रुख करें तो यमन में मौजूद वादी दाऊन खजूर की काश्तकारी और अंजीर की फार्मिंग की वजह से यहाँ काफी ज्यादा मशहूर है। वादी दाऊन का इलाका हिजरमौत की पहाड़ी वादियों में मौजूद है, जो अपनी कुदरती खूबसूरती और पुरअमन माहौल की वजह से जाना जाता है। हरास का पहाड़ी इलाका जो सना शहर के जुनूब में वाक़ है, ये तारीखी इलाका ज़राअत, गल्लाबानी और अपने तारीखी घरों की वजह से यहाँ काफी ज्यादा मशहूर है। यहाँ के लोग नशा आवर कात की फसल की काश्तकारी में माहिर समझे जाते हैं। फोलान का इलाका यमनी कबाइल का घर भी समझा जाता है। यहाँ मुख्तलिफ नस्ली सकाफती ग्रोह ज़माने कदीम से यहाँ आबाद हैं। बनी मतर की खूबसूरत पहाड़ी इलाकों से लेकर जबून, मसूरा, अल शजरा, बनी हशीश की वादियाँ भी यहाँ देखने के लायक हैं। दोस्तों, यमन को मुल्की इंतजामी अमूर की बिना पर कुल 22 सूबों से लेकर 333 इजला और 1,09,936 के करीब तमाम छोटे बड़े गाँव और देहातों में तकसीम किया गया है। यमन में जिंदगी के आसार हजारों साल पहले ही यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ मुख्तलिफ नस्ली ग्रोह और कबाइल भी आबाद थे। अरब के तमाम बड़े कबाइल यमन की सरजमीन से हिजरत करके सऊदी अरेबिया, ओमान, बहरीन, कतर और कुवैत के इलाकों में जा बसे। यमन की तहजीब व सकाफत, पुरानी रवायात और कल्चर में आज भी यहाँ के अरेबी कल्चर की झलक देखने को मिलती है, जिसमें यहाँ की यमनी शादियाँ सबसे ज्यादा मशहूर हैं। यमन के कुछ इलाकों में ये शादियाँ 7 रोज से लेकर 21 रोज तक लंबी चलती हैं। यमन में अक्सर पुरानी रवायात के मुताबिक यहाँ कम उम्र बच्चियों की ही शादी कर दी जाती है, जिनकी उम्र सिर्फ 15 साल होती है। यमनी लोग शादियाँ इंतहाई धूमधाम से करते हैं, जिसमें लोक डांस, लोक म्यूजिक बहुत ज्यादा मशहूर हैं। शादियों में ये तमाम यमनी लोग अपने सकाफती मलबूसात में ही तैयार होकर आते हैं, जिसमें दूल्हा खंजर को कमर के साथ बांधता है, जिसको यमनी ज़बान में जिम्बिया बोलते हैं। यहाँ की दुल्हनें ज्यादातर नकाब या अबाया करती हैं। बाकी अरब ममालिक की तरह यहाँ की औरतें भी सोने के जेवरात से सज धज कर आती हैं। शादियों में आए तमाम मेहमानों की तरह तरह के खानों से खूब हातर तवज्जो भी की जाती है, जिसमें यहाँ के यमनी खाने बहुत ज्यादा मशहूर हैं, जिनमें ऊंट, बकरे, दुम्बे के गोश्त के साथ चावल, मंदी और ज़रबियान यहाँ की मशहूर सुगातें समझी जाती हैं। रवायती लोग यमनी मौसीकी के साथ कबायली तलवारों का रक्स भी इनकी शादियों पर ये लोग शौक के साथ करते हैं। इस रक्स के बगैर इनकी शादियां अधूरी समझी जाती हैं। यमनी शादियां दिखने में इंतहाई ज्यादा प्यारी और हसीन जानी जाती हैं। दोस्तों, अब हम आपको यमन के बारे चंद एक दिलचस्प हकायक और इस मुल्क की तारीख के बारे में भी बताते हैं। यमन को अरबों की असल सरजमीन माना जाता है, जिसमें अरबों का मशहूर तरीन
कबीला कुरैश और मदीना का अंसार कबीला भी यमन से निकलकर हिजरत करके सऊदी अरेबिया में आबाद हुआ था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों में से एक बेटे ने सना शहर को भी यहाँ आबाद किया था। 7000 साल कदीम जिंदगी के आसार रखने वाला ये जजीरा नुमा मुल्क है। कदीम रूमी इस मुल्क को खुशालुल अरब के नाम से भी पुकारते थे। 7वीं सदी में इस्लाम के आने के बाद ये मुल्क इस्लामी तालीमात का मरकज बन गया। खिलाफत राशिदा के साथ साथ यहाँ अमवी, अब्बासी, जैदी इमाम और तुर्क हुक्मरानों का दबदबा भी रहा है। इमाम याहिया और इमाम अहमद के जाने के बाद इस मुल्क में बादशाहत के बाद जमहूरी निज़ाम नाफजुल अमल में आया। इस मुल्क की 70% आबादी सुन्नी मुसलमान है, जबकि 30% आबादी शिया मुसलमान। इस मुल्क में इंतहाई सह शरी कवानीन भी नाफजुल अमल हैं। औरतों को मुकम्मल पर्दे का हुक्म है। कोई भी अजनबी इस मुल्क में जाकर वहाँ की औरतों की तस्वीर नहीं बना सकता। ये यहाँ एक कानूनन जुर्म है। शराब पीने से लेकर पिलाने तक इस मुल्क में मुकम्मल पाबंदी आयद है। यमनी लोग अमान के लोगों की तरह अपने पास खंजर लाजमी रखते हैं, जो कि इनके एक कल्चर का हिस्सा है। यमन का शुमाली हिस्सा मादनी दौलत से भी मालामाल है, जहाँ ऑयल, गैस, कोबाल्ट, कॉपर, तांबे, आयरन, गोल्ड के बेपनाह बड़े ज़खायर मौजूद हैं। यमन की करेंसी को यमनी रियाल बोलते हैं, जो 1.12 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। दोस्तों, आप में से अक्सर लोगों ने यमन के हौसी बागियों के बारे में जरूर सुना होगा। यमन के हौसी बागी एक शिया जैदी मुस्लिम ग्रुप हैं, जिन्हें इंसारुल्लाह के नाम से भी पुकारा जाता है। ये ग्रोह शुमाली यमन के सूबे से ताल्लुक रखते हैं और इनके बानी हुसैन बदरुद्दीन हौसी थे। सन 2014 में यमन के इन हौसी बागियों ने यमन के दारुल हुकूमत सिटी सना पर अपना कब्जा कर लिया। यमन के ये हौसी बागी यमन की मौजूदा गवर्नमेंट के सख्त खिलाफ हैं। यमन के ये हौसी बागी मुल्क में इस गवर्नमेंट को खत्म करके मुल्क में एक शरी हुकूमत लाना चाहते हैं। दोस्तों, जमाने कदीम में कभी ये यमनी हित्ता इंतहाई पुरअमन और सुकून वाला समझा जाता था, जहाँ ये अरब ममालिक पर भी हुक्मरानी करता था। इसका काफी असर और रसूख और दबदबा हुआ करता था, लेकिन मुसलसल हाना जंगी और सिविल वार की वजह से ये मुल्क आज तबाही के दहाने खड़ा है। यमन की ज्यादातर मुल्क की 70% आबादी आज भी यमन के दूर दराज दही इलाकों में ही आबाद है, जहाँ ये लोग पुराने और रवायती अंदाजों में आज भी अपनी यहाँ जिंदगी बसर करते हैं। यमन के गाँव दिखने में इंतहाई प्यारे, सादा और खूबसूरत जाने जाते हैं, जहाँ ये यमनी लोग ज़माने कदीम से ही यहाँ आबाद हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है यमन विलेज लाइफ के बारे में आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद सैर व सियाहत की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल बिलाल टीवी को लाजमी सब्सक्राइब करें।